Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Chaubey from Government Girls College, Batul. Students, the topic that I have taken for today is common errors, and I have brought some quotations for you on errors. Leon Brown says, mistakes are the stepping stones to wisdom. We learn from trial and error. We become wise by understanding problems. Dale E. Turner says, the error of the past is the wisdom and success of the future. Alexander Loyn says, no one is exempt from the rule that learning occurs through recognition of errors. Students, in English, errors can be of different types. They can be in the use of nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, articles, verbs, subject-verb agreement, superfluous words, and incorrect words. Let us start with the errors in the use of nouns. Students, as you know, a noun is the name of a person, place, or thing. You know. And you also know that a noun is of different kinds, like the personal proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun, etc. And further, there are other divisions of noun also, like countable nouns and uncountable nouns. Uncountable nouns, as you see here on your screen, do not have plural forms and cannot be used with a or an. Now you have some examples of uncountable nouns here. The words are advice, news, information, furniture, luggage, scenery, paper, work, weather, traffic, etc. Now here are some sentences which are incorrect. What is the reason behind it? Why are these sentences incorrect? As you find here, the words scenery, furniture, and advice, these words are uncountable. As you know, uncountable noun cannot have their plural forms. So, sceneries, it cannot be sceneries. Furnitures, it cannot be furnitures. And with an uncountable noun, we cannot put a or an before it. So that's why these sentences are incorrect. And the correct sentences would be, the scenery of Kashmir is charming. He has bought costly furniture. He gave me a piece of advice. Now, two sentences. I saw white tiger in the garden yesterday. I have book. You know, students, singular countable nouns take an article a or an or the before them. And tiger, this is an example of countable noun. And a countable noun should have an article before it. But we find here that no article is used here. So that's why the sentence is incorrect. I have book. Book again is a countable noun and it should have a before it. That's why the sentence has become incorrect. The correct sentence is, I saw a white tiger in the garden yesterday and I have a book. Now the article a is used before word beginning with the consonant sound and the article an is used before a word beginning with the vowel sound. You know this. Now there are few sentences here that are incorrect. For example, you find here he is a MA. This is incorrect. He is a NCC officer. This is also incorrect. Honest man values honesty above everything. This is also incorrect. And what's the reason behind these sentences being incorrect? You know, am is, this word starts with a consonant. And you can say that since this word starts with a consonant, I is used here. But though the word is starting with a consonant, when we pronounce this word, the sound that comes is of a vowel. When we say am, the sound that is, initial sound that is coming is of a vowel. That's why, since pronunciation is more important, we should put an before am. In the second sentence, which is he is a NCC officer. Though the word NCC is beginning with an, that is a consonant, but the word or the sound that is coming when we pronounce an is of a vowel. That's why instead of a, an should be put
before the word NCC. A honest man. Again, H is silent. When we pronounce honest, H remains silent. So instead of A, N should have been used here because the sound that is produced when we pronounce honest is of a vowel. So that's why these sentences are incorrect, and the correct sentences are: he is an ME, he is an NCC officer, an honest man values honesty above everything. Now few more examples. He gave her an 1 rupee note. An university degree is no guarantee for a job. These two sentences are incorrect, and the reason is the same. You can say that the word one begins with a vowel, that is O. That's why an is used with it. But reality is that when we pronounce this word, the sound that comes is of a vowel. Of a consonant, that is va. That's why here instead of an, A should be used. When we pronounce university, the sound that comes is of a consonant. That's why with university instead of an, A should be used. That's why the correct sentences are: he gave her a 1 rupee note. A university degree is no guarantee for a job. So you find here that whether the sound that is coming from a word when we pronounce the word is of consonant or of a vowel, this is important. Now the definite article the is used, as you know, before the names of certain books, before the names of things unique of their kind, with ordinals, before musical instruments, before superlatives. You know all these things, and here are some examples of some sentences which are incorrect. Now Ramayana is an epic of India. Saturday is the 7th day. What's wrong with these sentences? Students, you know that Ramayana being a holy book, the should be put before it. And Saturday is 7th day. 7th is an ordinal, and before an ordinal, that is first, second, third, these are ordinal. Before these ordinals, the is used. So Saturday is the 7th day of week. This is the correct sentence. And moon did not appear. This sentence again is incorrect. What's the reason? Because moon being a thing unique of its kind, the should be used before it. I can play a flute. Flute is a musical instrument. We put the before a musical instrument. That's why this sentence has become wrong. And the last sentence is, he is a best boy. This sentence again is incorrect. Why? We put the before a superlative degree. Best is the superlative degree of the word good. That's why here the should be used. So the correct sentence would be, he is the best boy. Now the correct sentences are, the Ramayana is an epic of India. Saturday is the 7th day of the week. The moon did not appear in the sky for several days in the rainy season. I can play the flute. He is the best boy. Now the definite article the is used when a singular noun is meant to represent a whole class, as the cow is a useful animal. When we say the cow, it means it is representing the whole class of a cow. Before adjectives which represent a whole class of person, we should have compassion for the poor. When we say the poor, it means the poor word is representing a whole class of poor person. The definite article the is omitted where we do not use the article before names of substances, means materials, and abstract nouns used in general sense. Before most proper nouns, names of people like Ram, Saraswati, Sita, etc. Before the names of cities like Kanpur, Varanasi. Before the names of countries, but except the USA, the USSR, the UK. Names of individual mountains like Mount Everest. We use the when we say the Himalayas, means mountain range. Before the names of meals like breakfast, dinner, lunch, etc. Before the names of languages like English, Hindi, Sanskrit.
games like cricket, hockey, etc., parts of body, etc., we do not put the before them. Now here are some sentences which are incorrect. For example, the water is colorless. The honesty is the best policy. What is the reason behind these sentences being incorrect? Water being a substance, we cannot put the before it. The honesty. Honesty is an abstract noun. We cannot put the before it. We are learning the English. English is the name of a language, so the cannot be put before it. The dinner is ready. What's wrong here? Dinner is the name of a meal. That's why the cannot be put before dinner. He's playing the cricket. Cricket is the name of a game and we do not put the before the name of a game. That's why these sentences are incorrect, students, and the correct sentences would be water is colorless. Honesty is the best policy. We are learning English. Dinner is ready. He is playing cricket. Now, uncountable nouns take the when used in particular sense. We know that we cannot put generally the before milk, the before dinner. It's the name of meals. But when we use these words in a particular sense, we put the before them. For example, the milk in the jug is without sugar. The milk that is kept in the jug, this is particular milk that is kept in the jug, is without sugar. So here the is used before milk because we are pointing to special milk or a particular milk which is kept in the jug. The dinner we had at the Taj Hotel was nice. We are talking of a particular dinner that we had at the Taj. That's why the is used before the word dinner, which is meals. The definite article the is omitted before the nouns like school, college, university, church, hospital, prison, market, bed, when these places are visited for their primary purposes. For example, now few sentences that you find here on your screen are incorrect. My son goes to the school. My father is ill. He is going to the hospital. The convict has been sent to the prison. My son is going to the school for getting education. When these places are visited for their primary purpose, we cannot put the before them. जब इन शब्दों का प्रयोग हम या जब इन स्थानों का प्रयोग उनके प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कि हम स्कूल बच्चा क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ इसके सामने द का प्रयोग नहीं कर सकते. माय फादर इज इल, मेरे पिता बीमार हैं और वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर द का प्रयोग नहीं हो सकता. द कन्विक्ट हैज बीन सेंट टू द प्रिजन, उसको पनिशमेंट के लिए प्रिजन में भेजा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हो सकता. स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, इन स्थानों पर अगर इनके मुख्य उद्देश्य के लिए जाया जाता है तब उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता. इसलिए सही सेंटेंसेस हैं माय सन गोज टू स्कूल, माय फादर इज इल, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, द कन्विक्ट हैज बीन सेंट टू प्रिजन. But we say, I am going to the school to inquire about the progress of my son. यहाँ पर हम देखते हैं कि द का प्रयोग हुआ है स्कूल के पहले, जो कि सही है, क्योंकि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी लेने के लिए. I am going to the school to inquire about the progress of my son. यहाँ पर स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है पढ़ना या पढ़ाना, वहां पर मैं उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहा, प्राइमरी उद्देश्य के अलग एक उद्देश्य के लिए स्कूल जा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है. Shall we go to the prison and get the first hand information about the prisoner's condition there? हम लोग प्रिजन जाएं, वहां पर जाके प्रिजनर्स की कंडीशन की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करें. यहाँ भी प्रिजन इसलिए नहीं जा रहे कि सजा हुई है, बल्कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ प्रिजनर्स की कंडीशन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. तो यहाँ पर जेल में उसके मुख्य उद्देश्य के लिए नहीं जाया जा रहा, अपितु अन्य उद्देश्य के लिए जाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है. अगर मुख्य उद्देश्य के लिए प्रिजन का प्रयोग होता तो फिर द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता. Now there are certain mistakes that are committed
while using capital letters. For example, the capital letters are used to begin a sentence, to begin each new line of poetry, to begin all proper nouns and adjectives derived from them. As India, this is a proper noun, and Indian is an adjective that is derived from India. Shakespeare is a proper noun, and Shakespearean is an adjective that is derived from Shakespeare. To write the pronoun I in the interjection O. आप ये जानते हैं सभी नियम, और इसका प्रयोग करने में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं. जैसे कि आप यहाँ देखिए, राधा comes from कानपुर but I come from वाराणसी. This is incorrect sentence. I don't speak Sanskrit but I speak a little English. This sentence also is incorrect. What is the wrong behind these sentences? Why are these sentences incorrect? As you know, Kanpur, the word highlighted in yellow, is a proper noun. So it should be started with a capital letter, whereas small letter is used here. That's why this sentence has become incorrect. Again, I as personal pronoun should begin with or should be written in capital letter, whereas here I is written in small letter. That's why it's incorrect. I don't speak Sanskrit, but I speak a little English. English is a proper noun and it should not start with a small letter, whereas it is started here with a small letter. We should write capital letter E. Where do you come from? This sentence is again incorrect. What's the reason? The word where is starting from a small letter, whereas the word that is the beginning word of a sentence should start with a capital letter. He bought a new bicycle for his son's birthday. What's wrong here? Bicycle, as you know, is an example of common noun, and a common noun is started with a small letter. So instead of B capital, small letter B should have been used here. Now these are the correct sentences. Radha comes from Kanpur. K is capital here, but I is capital here. I don't speak Sanskrit, but I speak a little English here. English. In English, E is capital. Where do you come? Here we have made W capital here. He bought a new bicycle. Here we have made this B small. That's why these sentences have become correct. Now, errors in the use of pronouns. One should help his friend in difficulty. This is incorrect, and the correct sentence should be one should help one's friend in difficulty. As you know, one is the indefinite pronoun. So one must be followed by the forms of the same indefinite pronoun. We cannot say one should help his friend. Instead of it, we should say one should help one's friend in difficulty. He has a dog. I like its color. This is wrong. I think it's time to discuss this question. Now what's wrong with the first sentence? He has a dog. I like its color. Its with apostrophe is the contracted form of it is. So if we put the expanded form of this word, the sentence would be I like it is color, and the sentence would be incorrect. आप देखिए कि जो इट्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगा है वह संकुचित शब्द है, और किस शब्द का? इट इज का. अगर हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दें तो शब्द बनेगा आई लाइक इट इज कलर, और अगर हम कहेंगे इट इज कलर, आई लाइक इट इज कलर, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया. तो इसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी हटा के इट्स का प्रयोग करते तो वह सही होता. अब हम देखें, आई थिंक इट्स टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. हम कहना चाहते हैं इट इज टाइम, और उसकी जगह पर हमने इट्स कर दिया, और इट्स क्या है? इट्स पॉजेसिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. तो इसलिए यहाँ पर ऊपर के दोनों सेंटेंसेस गलत हो गए, और करेक्ट सेंटेंस है ही हैज अ डॉग आई लाइक इट्स कलर. इट्स यहाँ पर जो है बिना अपॉस्ट्रोफी का, यह क्या है? ये पॉजेसिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ये सही है. आई थिंक इट्स टाइम मीन्स आई थिंक इट इज टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. नाउ यू फाइंड हियर इट्स with apostrophe and the expanded form is it is, and it's without apostrophe is possessive form of personal pronoun. आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको कहा जाता है कि yours में apostrophe मत लगाएं. क्यों नहीं लगाएं? कि yours में जब apostrophe लगी है तो ये क्या है? ये संकुचित फॉर्म है, और इसका
फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, योर इज। तो योर इज फेथफुली तो आप लिखना नहीं चाहते, आप तो लिखना चाहते हैं योर्स, तो इसलिए योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाता है योर इज, जबकि सही शब्द है योर्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी। देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, लेट यू एंड आई डू इट, बोथ दीज सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों? सही सेंटेंस है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, आई की जगह मी का प्रयोग होना था। लेट यू एंड मी डू इट, यहाँ पर भी आई की जगह मी का प्रयोग होना था। क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन वंस द प्रोनाउन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। आप देखें, बिटवीन जो एक प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ना होकर ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। आई नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन यू एंड मी। लेट आप देख रहे हैं ये एक वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी नॉमिनेटिव केस में नहीं हो सकता, इसलिए आप नहीं कह सकते लेट यू एंड आई। लेट जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, तो हमें कहना पड़ेगा लेट यू एंड मी डू इट। इस प्रकार ये सेंटेंसेस सही बनेंगे। Each of the students have done well. Neither of them were invited to the ceremony. Both these sentences are incorrect. दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों? देखिए नीचे नियम लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस each, either and neither must be followed by singular verbs. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जैसे कि each, either, neither वगैरह, इनके बाद में सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो जब हम कहते हैं each of the students, हर स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट, तो हमें हैव का प्रयोग नहीं करना, हमें करना है हैज का प्रयोग। each of the students has done well. Neither of them were की जगह neither of them was invited to ceremony. अब आप देखें, I and you came to his rescue, ये सेंटेंस गलत है। I, you and he were present, ये भी गलत है। सही सेंटेंस होना था you and I came to his rescue. You, he and I were present in the hall. कारण क्या है? क्योंकि अगर हमको तहजीब का ये तकाजा है बच्चों कि पहले हम सामने वाले की बात करेंगे। अगर दो व्यक्ति की बात हो रही है तो पहले सामने वाला और फिर हम, और अगर हम तीन लोगों की बात कर रहे हैं तो पहले हम सामने वाले की बात करेंगे, फिर किसी अन्य व्यक्ति की, और फिर अपनी बात करेंगे। तो ये क्रम इस प्रकार होना चाहिए, जब आप और हमारी बात हो रही है तो पहले यू एंड आई, और जब आपकी, किसी और की और हमारी बात हो रही है तो पहले आप, फिर कोई दूसरा और फिर हम, सबसे आखिर में हम। इस क्रम में हमें चीजों को लिखना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं करेक्ट सेंटेंसेस है यू एंड आई केम टू हिज रेस्क्यू, यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द हॉल। देखिए वही जो अभी हमने बात की वही यहाँ पर लिखी है। गुड मैनर्स रिक्वायर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यू एंड आई, नॉट आई एंड यू, you and he, not he and you, Ram and I, not I and Ram, he and I, not I and he। सभी में आपने देखा पहले सामने वाले को तरहीज देनी है, फिर किसी और व्यक्ति को तरहीज देनी है, उसके बाद अपना क्रम आता है। इस तरह से आप लिखेंगे तो सेंटेंसेस सही होंगे। अब आप देखें एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। माय सिस्टर इज ओल्डर देन मी, My friend Sunita is elder than me. Both these sentences are incorrect. Why? Because you find here the rule is written here. Elder and eldest are used for the members of the same family, whereas older is used for a member of other family. एल्डर और एल्डर का, एल्डेस्ट का प्रयोग हम एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए करते हैं। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं माय सिस्टर इज ओल्डर, तो यहाँ हम अपने परिवार की, अपनी बहन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग न होकर एल्डर का प्रयोग होना था। माय फ्रेंड सुनीता इज एल्डर देन मी, यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, तो इसलिए यहाँ पर एल्डर की जगह पर ओल्डर का प्रयोग होना था। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग अपने परिवार के सदस्य के लिए होता है, और ओल्डर का प्रयोग या ओल्डेस्ट का प्रयोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति के लिए किया जाता है। This question is the easiest of the two.
Apples are sweeter than oranges. These sentences are incorrect. ये दोनों sentences गलत हैं. क्यों? देखिए नियम लिखा है. The comparative degree of an adjective is used when two things or sets of things are compared. Comparative degree का प्रयोग होता है जबकि दो चीजों की या फिर दो चीजों के सेट की तुलना की जाती है. जब हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न में, पहले सेंटेंस में, दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू. हम दो प्रश्नों के बात कर रहे हैं, उनकी तुलना की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर इजीएस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है उसकी जगह पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए था. दो के बीच में तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री. तो सही सेंटेंस होगा दिस क्वेश्चन इज द इजियर ऑफ द टू. जब हम दूसरे सेंटेंस में बात कर रहे हैं एप्पल्स आर स्वीटर देन ऑरेंजेस, यहाँ आप देखिए एप्पल्स और ऑरेंजेस ये दो जो फ्रूट्स हैं उनके ग्रुप की बात हो रही है. तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए था. तो सही सेंटेंस होगा एप्पल्स आर स्वीटर देन ऑरेंजेस. अब देखें जिस चीज में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं उसका उदाहरण आप देखें. यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग. ये बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा. लिटिल का मतलब ज्यादा नहीं, न के बराबर, इसका एक नकारात्मक अर्थ है. बिल्कुल न के बराबर अगर कोई चीज है तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे. अ लिटिल का मतलब सम, थोड़ा सा, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग. द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज. द लिटिल का मतलब ज्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा, लेकिन जितना भी है उतना पूरा. फिर से आप देखें, लिटिल का मतलब न के बराबर, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, द लिटिल का मतलब थोड़ा सा लेकिन जितना भी है उतना पूरा. एग्जाम्पल देखते हैं. ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हर मदर. उसने अपनी माँ के लिए थोड़ी बहुत चिंता दिखाई, मतलब न के बराबर. लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में, न के बराबर. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज. द लिटिल अमाउंट ही हैड वाज नॉट सफिशिएंट, मतलब जितना थोड़ा सा अमाउंट उसके पास में था वो सफिशिएंट नहीं था. तो इस तरह आपने देखा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों के अर्थ में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है. अब देखिए गलत किस तरह से सेंटेंस बन जाता है. आई हैव लिटिल शुगर, आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज. अभी हमने देखा था लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर. तो अगर हम कहते हैं कि आई हैव लिटिल शुगर, अगर मेरे पास न के बराबर शुगर है तो आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज, हाउ कैन आई गिव यू 2 किलोज. तो इसलिए इसकी जगह पर होना चाहिए था आई हैव अ लिटिल शुगर, मतलब थोड़ी सी शुगर है. लिटिल का मतलब न के बराबर है. तो आई हैव अ लिटिल शुगर, आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज. देखिए एडजेक्टिव्स के प्रयोग में और कुछ गलतियां. आई हैव फ्यू मनी, आई हैव अ लिटिल बुक्स. देखिए यहाँ क्या गलती हो रही है. नीचे नियम देखिए. फ्यू एंड अ फ्यू रेफर टू काउंटेबल नाउन्स एंड आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, and little and a little refer to uncountable nouns and are used with singular nouns. few का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं और मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए उसके साथ में फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता. लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं और बुक जो है वो तो काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हम लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते. इसलिए सही सेंटेंसेस होंगे आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ फ्यू बुक्स. अब देखिए और किस प्रकार की गलतियां होती हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, द स्ट्रीट ऑफ कराची आर वाइडर देन मुंबई, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया. आप यहाँ देखेंगे कि दो चीजों की तुलना हो रही है और कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग है एडजेक्टिव की. तो आपको लगेगा ये सेंटेंसेस तो सही है, लेकिन बच्चे ये सेंटेंसेस गलत हो गए. सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं. क्यों? क्योंकि हम तुलना किस चीज की कर रहे हैं. हम कंपेयर कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड. हम इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड के क्लाइमेट से न करके हम इंडिया के क्लाइमेट की तुलना पूरे के पूरे इंग्लैंड से कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया. दूसरे सेंटेंस में देखिए द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर देन मुंबई. कराची की जो गलियां हैं पूरे के पूरे मुंबई से चौड़ी हैं, तो ये तो गलत बात है. पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया. हम ये नहीं कह रहे कि पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी इन इंडिया. हम एक लंदन की पॉपुलेशन की तुलना भारत की पॉपुलेशन से ना करके हम लंदन की पॉपुलेशन की तुलना भारत के किसी शहर से कर दे रहे हैं. तो इसलिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस बच्चों गलत हो गए. और ये सही सेंटेंसेस किस प्रकार बनेंगे देखिए आप.
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर दैन दैट ऑफ इंग्लैंड। दैट ऑफ का प्रयोग हम करेंगे, या फिर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर दैन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। द स्ट्रीट ऑफ कराची आर वाइडर दैन दैट ऑफ मुंबई। The population of London is greater than any city नहीं, the population of London is greater than that of any city in India। इस तरह ये sentences सही होंगे। और देखते हैं बच्चों कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं। Errors in subject verb agreement। हमारा जो भी verb है वो subject के अनुरूप होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, the number of people are increasing, a number of people is coming, one of the boys have done it। All these three sentences are incorrect। तीनों की तीनों sentences बच्चों गलत हो गए। क्यों? The number of people are, the number of people, यहाँ subject क्या है? The number, that is a singular subject, और हमने उसके साथ में are लगा दिया, तो सही सेंटेंस होगा द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। व्यक्तियों की संख्या, संख्या सब्जेक्ट है, उसके लिए यहाँ पर इस का प्रयोग होना था। जब हम कहते हैं ए नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट क्या है? ए नंबर ऑफ पीपल मैंने बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में इनकी इसकी जगह पर आर का प्रयोग होना था। वन ऑफ द बॉयज हैव डन इट, ये भी गलत है। वन ऑफ द बॉयज जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसके साथ में हैव का प्रयोग ना होकर हैज का प्रयोग होना था। तो सही सेंटेंस होगा वन ऑफ द बॉयज हैज डन इट, द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग। इस तरह आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है उसका वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के आधार पर डिपेंड होगा वर्ब। कुछ और उदाहरण, जैसे 5000 रुपीज आर अ हाई प्राइस टू पे, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये दोनों सेंटेंस गलत है। आप कहेंगे कि वहां रुपीज लिखा है या किलोमीटर्स लिखा है, तो यहाँ पर तो आर का प्रयोग सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए नियम क्या कहता है, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वालिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज ए होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। जब हम किसी स्पेसिफिक क्वालिटी या अमाउंट को समग्र रूप में लेते हैं, जैसे 10 किलोमीटर्स एक जो दूरी की हम बात कर रहे हैं, जो 10 किलोमीटर्स की जो दूरी है वह उसको हम एक समग्र रूप में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर इस का प्रयोग होगा। 5000 रुपीज, इसको हम एक समग्र राशि के रूप में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर इस का प्रयोग होगा और सही सेंटेंसेस बनेंगे 5000 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देखिए, इंग्लिश एज वेल एज लैटिन आर टॉट हियर। आप कहेंगे यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है और लैटिन की बात हो रही है, तो दो चीजों की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर आर ठीक है। द बस विद इट्स पैसेंजर्स वर लॉस्ट, बस भी और पैसेंजर्स भी दोनों लॉस्ट हो गए, दोनों की बात हो रही है, तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें वर्ब का प्रयोग करना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इंग्लिश एज वेल एज लैटिन इज टॉट हियर, ये सही है। क्यों? देखिए, आप नीचे देखिए, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद एज वेल एज आर पुट इन सिंगुलर। जिन शब्दों को हम विद या फिर एज वेल एज के साथ में जोड़ देते हैं वो सिंगुलर में, तब उनका जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होता है। आप देख रहे हैं एज वेल एज के साथ में हमने लैटिन को जोड़ा है, तो जो शुरू का सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। द बस सिंगुलर है, उसके अनुसार ही यहाँ पर वर्ब जो वर्ब है उसकी जगह पर वॉज का प्रयोग होगा। एज वेल एज के साथ में जो भी शब्द जोड़ा जाता है उसको हम ध्यान न देते हुए सब्जेक्ट का जो भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एज वेल एज विद के साथ में जिन शब्दों को हम जोड़ेंगे उनकी ओर ना ध्यान देते हुए इनिशियल जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब देखें और एग्जांपल्स। आइदर वीरा और राधा आर कमिंग, नाइदर वीना नॉर विमल लिव हियर। दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। कारण क्या है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आप देखें यहाँ पर वीरा और राधा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उसे हमने आइदर से जोड़ा, दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ आर is should be used here. Either Meera or Radha is coming.
नाइदर वीना नॉर विमल लिव्स हियर, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जोड़ा हुआ है, या तो मीरा या फिर राधा, न तो वीना न तो विमल। Either he or I are wrong, either you or he are to blame। यहाँ आप देखिए ये क्यों गलत हो गए। इसमें देखिए दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैं लेकिन डिफरेंट पर्सन के हैं। ही इज थर्ड पर्सन एंड आई बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन। जब दो अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट्स रहते हैं और उनको हमें उनके साथ में किसी वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो वर्ब के बिल्कुल नजदीक वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए आइदर ही और आई आर की जगह आई एम। हमारे दोनों सेंटेंस में वर्ब क्या है? आर है, और आर के बिल्कुल नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है? पहले सेंटेंस में आई है, और आई के साथ में किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब का एम का प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य में आप देखें वर्ब इज है, उसके साथ में आप देखें सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। तो वर्ब के बिल्कुल नजदीक का जो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में जो ही है उसके अनुरूप ही हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर ही आर की जगह पर ही इज। जब आप आइदर और नाइदर नॉर से अलग अलग पर्सन के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वगैरह में से अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो जो वर्ब के सबसे नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई सबसे पहले सेंटेंस में आई वर्ब के नजदीक है तो यहाँ पर आई के अनुरूप वर्ब लगेगा एम। दूसरे सेंटेंस में ही के साथ में ही जो है वो वर्ब के पास में है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर आपने देखा ही इज। अब देखिए हम इसी प्रकार की और गलतियां क्या होती हैं, जैसे देखिए नाइदर विभा नॉर द अदर्स इज अवेलेबल। यहाँ पर गलत है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। क्यों गलती है? मैंने सिंगुलर एंड ए प्लूरल, अभी हम बात कर रहे थे दो सिंगुलर सब्जेक्ट की, अब हम बात करेंगे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है। तब क्या करना चाहिए? When a singular and a plural subject are connected by either or neither or, put the plural subject last and use a plural verb। अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है तो हमको क्या करना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रख देना चाहिए और वर्ब को उसके अनुरूप हमें निर्धारित करना चाहिए। पहले सेंटेंस में क्या गलती हुई? नाइदर विभा नॉर दी अदर्स इज अवेलेबल। ये तो सही है कि जो दूसरा सब्जेक्ट अदर्स है वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर सही सेंटेंस होगा नाइदर विभा नॉर द अदर्स आर अवेलेबल। दूसरे सेंटेंस में देखिए नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। इसमें भी देखिए एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है टीचर और एक सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें ये पता है कि हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, और लेकिन हम टीचर के साथ में तो प्लूरल का वर्ब का अगर प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको जो टीचर है उसको शुरू में कर देंगे और स्टूडेंट्स को बाद में कर देंगे, और तब सही सेंटेंस बनेगा नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। क्योंकि ये सच है कि हमको एक सिंगुलर और एक प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब तो प्लूरल ही लगाना है, और अगर हमने वैसा का वैसा ही सेंटेंस उतार दिया होता नाइदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर कहते तब फिर गलत हो जाता। तो इसलिए हमें सही सेंटेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसे हम पहले ले आएंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है उसे हम बाद में ले जाएंगे और उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो सही सेंटेंस बन जाएगा नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखिए एरर्स इन द टेंसेस। टेंसेस आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, और लेकिन फिर भी उसमें गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां कैसे कैसे होती हैं ये आप देखिए। ही ऑलरेडी गेव मी अ बुक, यही सेंटेंस गलत है। दे जस्ट केम हियर, आई हैव सीन द ताज इन 1990। तीनों सेंटेंसेस गलत हैं। आप अपने मन में सोचिए कि ये सेंटेंस गलत हो गए। ही ऑलरेडी गेव मी अ बुक, ऑलरेडी का प्रयोग इज ऑलरेडी इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
उसने पहले से ही मुझे एक किताब दे दी है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ होना था, और आप जानते हैं कि गिव दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिव, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हमको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था, तो फिर ये कैसे बनेगा? ही हैज ऑलरेडी गिवन मी अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में as you know has और have and the third form of verb is used। दूसरा सेंटेंस देखिए, they just came here। आप जानते हैं just का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस बन गया, उसकी जगह पर क्या होना था? they have just come here। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I have seen the Taj in 1990। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का इस प्रकार उल्लेख नहीं किया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने ताज 1919 में देखा था, इसमें समय का उल्लेख है, इसका मतलब इसे पास्ट सिंपल टेंस का होना चाहिए था। तो सही सेंटेंस बनेगा आई सॉ द ताज इन 1990। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में यही डिफरेंस है, दोनों में कार्य भूतकाल में संपन्न होता है। पास्ट सिंपल टेंस में समय का उल्लेख किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में समय का उल्लेख नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का उल्लेख नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे ऑलरेडी, जस्ट इत्यादि शब्दों का, ये जो शब्द है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह देखा कि आपने ये सब टेंसेस की वजह से ये वाक्य गलत हो गए। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। I have gone to Delhi in 2010। बिल्कुल वही गलती जो पिछले स्लाइड में आपने देखी, कि जब इसमें समय का उल्लेख है और कार्य भूतकाल में हुआ है, तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसलिए सही सेंटेंस होगा I went to Delhi in 2010। अब यहाँ देखें, she is singing for an hour। ये वो गलती है जो बच्चों, बहुत सारे बच्चे करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि वो 1 घंटे से गाना गा रही है, तो इट कैन नॉट बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो कार्य वर्तमान में जो जारी होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, और जो कार्य पहले से शुरू हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है उसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है ना। तो फिर इसलिए यहाँ पर शी इज सिंगिंग फॉर एन आवर नहीं कह सकते, हमें कहना होगा शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। और अगर होता यहाँ पर फॉर एन आवर नहीं लगा होता तो फिर सेंटेंस सही था, शी इज सिंगिंग मतलब अभी वो गाना गा रही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो 1 घंटे से गाना गा रही है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। अब आप लास्ट सेंटेंस देखिए, शी डिडंट वेंट देयर। व्हाट्स रॉन्ग हियर? आपको मालूम है कि जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये पास्ट सिंपल टेंस का उदाहरण है। तो डिड का प्रयोग होने के बाद भी इसके साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा शी डिडंट गो देयर। वेंट की जगह पर गो कर देंगे और वाक्य सही बन जाएगा। अब आप देखें, एरर्स इन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंस के सीक्वेंस में भी गलतियां होती हैं। अब इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। A present or future tense in the principal clause may be followed by any tense required by the sense। अगर किसी टेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो उसके बाद का क्लॉज वह किसी भी टेंस का हो सकता है। क्लॉज आप जानते हैं, a group of words that forms a part of sentence and has a subject and predicate। एक वाक्य का एक भाग है जिसमें कि सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। जैसे यहाँ पर ही सेज एक क्लॉज है, एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग दूसरा क्लॉज है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज है वाक्य का, अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, सॉरी प्रेजेंट में, किसी भी प्रेजेंट में हो या फिर किसी भी फ्यूचर में हो, तो उसके बाद के जो क्लॉजेस हैं वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और आपने शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो फिर जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसके टेंस में चेंज नहीं होता था। तो यहाँ आप देखें, ही सेज ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसके बाद का क्लॉज जो है वो किसी भी टेंस का हो सकता है। पहले सेंटेंस में देखें, ही सेज दैट शी सिंग्स अ सॉन्ग, he says that she sang a song, पास्ट में भी चलेगा। he says that she will sing a song, फ्यूचर में भी चलेगा, सभी सही हैं। उसी प्रकार दूसरी जगह आप देखिए, he will say, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो फ्यूचर में है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में भी है तो भी उसके बाद का जो क्लॉज है वो किसी भी टेंस में चलेगा। जैसे आप देखिए, he will say that she sings a song, he will say that she sang a song, he will say that she will sing a song, इसमें ये सभी सही हैं। ओके, now errors in the sequence of tenses।
अब देखिए गलत क्या हो जाता है, he said that he will come soon। यहाँ क्या हुआ, पास्ट का जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट का है और उसके साथ में जो इसका दूसरा क्लॉज होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके बाद का क्लॉज किसी भी टेंस का चलेगा, लेकिन अगर वो पास्ट में है तो फिर जो उसके साथ का क्लॉज है उसे हमेशा ही पास्ट में ही होना चाहिए, इसलिए सेंटेंसेस सही होंगे। He said that he would come soon. She thought that she could win the prize. He said that the sun rises in the east. यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में हमने इसको पास्ट में नहीं बनाया बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग अ यूनिवर्सल फैक्ट। अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट व्यक्त होता है क्लॉज में तो उसके टेंस में चेंज नहीं होता, वो प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। अब बहुत कम समय बचा है, थोड़ा सा बच्चों हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। I did good on the test. What's wrong here? Good is an adjective and we should use here an adverb. इसकी good की जगह पर well का प्रयोग होना था। How good you speak? It's again an adjective. Well should be used here. How well? I think he is a well public speaker. Well is an adverb. Instead of an adverb, an adjective should have been used here. So the correct sentence would be, I think he is a good public speaker. Now he has been playing cricket for 2014. As you know, for is used for period of time and since for point of time. कार्य की अवधि के लिए for का प्रयोग और point of time के लिए since का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर since और for का प्रयोग गलत है। सही sentences होंगे, he has been playing cricket since 2014. He has been playing cricket for 2 years. Some errors in the use of prepositions. She is married with, this is a wrong. She is married to a dentist. She jumped in the river instead of in. She jumped into the river. I do not agree with you with your proposal. This is incorrect. The correct preposition is I do not agree to your proposal. My wife is good in French. This in is wrong. Instead of in, at should be used. My wife is good at French. Now again some examples of incorrect use of prepositions. He is desirous for instead of for. He is desirous of joining. Correct sentences you should see. She prefers coffee to tea. She is senior to me. He is superior to me. Now we cannot use double negative. They aren't going nowhere. आप देखें यहाँ पर aren't का भी प्रयोग हो गया और nowhere का भी प्रयोग हो गया। nowhere का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इसकी जगह they aren't going anywhere. He hasn't spoken to nobody. इसकी जगह पर he hasn't spoken to anybody yet. I saw a dead horse walking across the field. अगर हम शब्दों का उलट-पलट आगे या पीछे कर देते हैं तो कैसे गलत अर्थ निकल आता है। I saw a dead horse walking across the field. मैंने एक डेड हॉर्स को देखा जो कि फील्ड में वॉक कर रहा था। ये अर्थ निकल के आ रहा है थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करने से। कहना कैसे चाहिए था, वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड I saw, क्योंकि फील्ड में कौन वॉक कर रहा था, मैं, तो वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड आई के पहले आना था। और अगर हमने आगे पीछे शब्द कर दिए तो अर्थ ये निकल के आ गया कि डेड हॉर्स वॉक कर रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, ही शॉट हिमसेल्फ डेड आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय विद अ गन। कैसे लग रहा है इसका मीनिंग कि उसने अपने आप को शॉट डेड कर दिया अपनी पत्नी को गन से गुड बाय करते हुए, जबकि होना क्या था, आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय ही शॉट हिमसेल्फ विद अ गन। तो शब्दों के हेर फेर से देखते हैं किस प्रकार गलतियां हो जाती हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग गलतियां जल्दी से देखते हैं। He gave a stool to the servant that had 4 legs. उसने अपना एक स्टूल दिया अपने सर्वेंट को जिसके कि 4 लेग थे। और कहना क्या चाहते हैं, 4 लेग्स किसके थे, स्टूल के थे। सही सेंटेंस कैसे होना था, He gave the servant a stool that had 4 legs. स्टूल के 4 लेग्स थे तो 4 लेग्स जो है वो स्टूल के साथ में यूज होना था। A gentleman has a dog to sell who wishes to go abroad. जेंटलमैन एक डॉग को बेचना चाहता है और बाहर कौन जाना चाहता है, जेंटलमैन। तो उसकी जगह पर हमने क्या कह दिया कि डॉग बाहर जाना चाहता है। सही सेंटेंस क्या होता, अ जेंटलमैन हु विशेस टू गो अब्रॉड, जो बाहर जाना चाहता है जेंटलमैन। तो ही विशेस टू गो अब्रॉड किसके साथ में लगना था, ए जेंटलमैन के साथ में। सही सेंटेंसेस होंगे, अ जेंटलमैन ही विशेस टू गो अब्रॉड हैज अ डॉग टू सेल। कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड जैसे ही इज माय कजिन ब्रदर, अक्सर हमने सुना है बच्चे कहते हैं। कजिन का मतलब ही है कि चचेरा भाई या बहन, तो उसके साथ में ब्रदर की जरूरत नहीं है। सपोज इफ और इफ दोनों में से एक का प्रयोग करना है। दिस इज मोर
मोर सेफर, मोर और सेफर दो की आवश्यकता नहीं, सेफर ही उस मार्क्स को कह दे रहा है। कंपेरेटिवली बेटर, यहाँ पर भी सिर्फ बेटर का प्रयोग करने से भी चलेगा। अब यहाँ ही कमिटेड अ ब्लंडर, मिस्टेक, मिस्टेक ब्लंडर का मतलब ही बड़ी भारी भूल है, तो मिस्टेक की जरूरत नहीं, पास इन की जगह पास, अविनाश विल पास, शी रीच्ड टू माई होम की जगह शी रीच्ड होम, ये सही होगा। देन जो है वो कंपेयर करने के लिए THAN का प्रयोग होता है, और देन माने तब, तो इसलिए यहाँ पे दोनों गलत है। आई शेल सी यू देन THAN की जगह आई शेल सी यू THEN देन, एंड शी हैड लिव्ड हियर लॉन्गर देन, यहाँ कंपेयर करने के लिए THAN का प्रयोग होता है। अ पीस ऑफ वुड इज स्विमिंग, देखिए यहाँ पर स्विमिंग जब हम उस तैरने को कहेंगे जिसमें प्रयास लग रहा है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग आना था। इन्वेंट हम उस चीज का करते हैं जो कि पहले से विद्यमान ना हो, तो कोलंबस ने जो अमेरिका जो था वो तो पहले से विद्यमान था, तो उसका इन्वेंट कैसे कर सकते हैं, उसको डिस्कवर किया। और एडिसन डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन ऑलरेडी था ही नहीं, उसका तो आविष्कार किया था, तो इसलिए यहाँ पर डिस्कवर की जगह पर इन्वेंट का प्रयोग करेंगे। लास्ट स्लाइड, आई एडवाइज, यहाँ एडवाइज जो है वो नाउन है, वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था ADVISE। प्रिंसिपल स्पेलिंग गलत है, यहाँ PAL, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। आई हैव जस्ट मेट अ लेडी विच आई सॉ, विच का प्रयोग बेजान चीजों के लिए होता है, लेडी के लिए हु का प्रयोग होना चाहिए था। माई ब्रदर हैज अ PhD की जगह माई ब्रदर इज अ PhD। ही ट्राई टू फाउंड, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड। ही गेव मी हेल्पफुल मार्क, मार्क नहीं मार्क्स का प्रयोग होना था। अब कुछ बच्चों आपसे कुछ प्रश्न है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। बता दीजिए बच्चों जल्दी से, 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आया है। बताइए ये सेंटेंस गलत है, ये तो आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस सही आप इसको कैसे कर सकते हैं? ही इज ए ऑनेस्ट मैन। बच्चों ये सेंटेंस को, सेंटेंस सही सेंटेंस क्या होगा? हेलो, हाँ हाँ बेटा, हाँ बताइए। एन ऑनेस्ट मैन। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे बेटा, ऑनेस्ट बोलेंगे, एच साइलेंट रहता है। सही आपने आंसर बताया, ही इज हॉनेस्ट ना बोल के ही इज एन ऑनेस्ट बोलेंगे, सही आंसर आपका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसको सही करना है सेंटेंस को। माई फ्रेंड इज 1 ईयर एल्डर देन मी, मेरा फ्रेंड मुझसे 1 साल एल्डर है। एल्डर के प्रयोग में कहीं गलती है, क्या शब्द होना था यहाँ पर? ओल्डर। ओल्डर बिल्कुल सही, क्योंकि हम अपने परिवार, माई फ्रेंड इज 1 ईयर ओल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने परिवार के सदस्य की बात करते हैं तो एल्डर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज ओल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड इज 1 ईयर ओल्डर देन मी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट? इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है बच्चों? ही गेव मी एन एडवाइस या फिर ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? ही गेव मी एन एडवाइस। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। Which of the following adjective refers to hardly any? अभी हमने कहा बहुत ध्यान से देखने के लिए, the few, a few और few, इन तीनों में से किसका तात्पर्य है hardly any? नाम मात्र को। few, few, हाँ बिल्कुल सही है, few सही आंसर है, वेरी गुड। Which of the following adjective is used for uncountable nouns? जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके लिए कौन सी शब्द का इसमें से प्रयोग करना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए? लिटिल का, फ्यू का, मैनी का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? लिटिल। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। If the principal clause is in the present tense or the future tense, the subordinate clause can be in. अभी हम clauses की बात कर रहे थे, अगर principal clause present या future tense में है तो फिर जो बाद वाला clause है वो कौन सी tense का हो सकता है? present tense, past tense, future, या फिर इनमें से किसी का हो सकता है? वाक्य में जैसे 2 clauses हैं, पहला clause principal clause और उसके साथ वाला क्लॉज जो होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो बाद वाला क्लॉज जो है वो कौन सी टेंस का हो सकता है? फ्यूचर टेंस। वो किसी भी टेंस का हो सकता है, इसका आंसर जो है
अगर हाँ एनी ऑफ द अबव सही आंसर है। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो उसके बाद वाला क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस का होता है तो फिर उसके बाद वाले क्लॉज को पास्ट टेंस में होना चाहिए। एनी ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। यहाँ कुछ किताबों के नाम है और हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर है, मोबाइल नंबर है। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, आप हमसे कुछ प्रश्न अगर इसके बाद पूछना चाहेंगे, अभी तो समय समाप्त हो गया है, आप हम मेल के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, फोन करके भी हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने मुझे बहुत सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।